Hello everyone. In this video, we are going to learn the regulation of respiration and the various disorders that are associated with the respiratory system. In the previous video, we have done the entire topic of this respiratory system. So do watch those videos if you have not watched them till now. So regulation of respiration. So how the respiration is regulated, the we breathe and we are exhaling. So this process should be under some regulation. If it is not under regulation, then there must be some uh, look, if you want a system to run properly, there must be a regulation over it, like we saw in the digestive system, that there are many regulations, hormonal regulations, neural regulation, that digestive system had its own nervous system to regulate its function. Similarly, the respiratory system had its own regulatory centers. So two type of regulations we will study here. One is the neural regulation and another is the chemical regulation. So let us talk about the neural regulation. Neural regulation is by means of certain neurons. So there are cluster of neurons that form a center. So these cluster of neurons are present mainly in the two neural centers. These neural centers, ये जो neural centers है that are regulating the respiration, ये दो जगह पे present होते हैं. One in the pons and other in the medulla oblongata. Now if you look at this brain, and we this is a sagittal section of a brain. अगर इसको थोड़ा और zoom करके इस region को देखा जाए, ये hypothalamus है, इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है एरिया, this this is called the pons. और pons के नीचे जो एरिया होता है इसको बोलते हैं medulla oblongata, जो कि नीचे spinal cord में जाके मिलता है. So spinal cord, it emerges from the medulla oblongata. Now there are two centers or two areas for controlling the regulation, controlling the respiration in medulla oblongata. medulla oblongata में respiration को control करने के लिए दो centers होते हैं. पहले center का नाम होता है inspiratory center और दूसरे का नाम होता है expiratory center. देखो, अगर आपने वो वीडियो देखा है जिसमें हमने बात करी है कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो अगर वो पढ़ा है तो ये जस्ट उसी का स्वार है. जो हमने पढ़ा कि ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को एंड फ्रेनिक नर्व से डायफ्राम को, एंड दे कॉज द एक्सपेंशन ऑफ द थोरैसिक कैविटी. बस वही है कि वो नर्व न्यूरॉन्स कहाँ से वो नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रहे थे, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो दिस रीजन इज द मेड्यूला. यहाँ पे ये जो आपको रीजन दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द वेंट्रल पार्ट. वेंट्रल पार्ट इज व्हाट, अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो जिस तरफ आपकी चेस्ट कैविटी है, सामने की तरफ, यहाँ पे आपकी चेस्ट है, दैट रीजन इज द वेंट्रल रीजन. और पीछे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज द डॉर्सल रीजन. तो डॉर्सल और वेंट्रल आप ऐसे पहचान सकते हैं. जनरली जो ओरल कैविटी होती है, माउथ होता है, वो वेंट्रल होता है. तो हमारा माउथ जिस साइड है वो वेंट्रल साइड है और उसके अपोजिट जो साइड है वो डॉर्सल है. तो डॉर्सल पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस हैज दिस डॉर्सल सेंटर. दिस सेंटर वी कॉल इट inspiratory area or center. Okay, and this is the expiratory center या expiratory area. Okay, and in the pons, this is the pons, there are two type of this is known as the pneumotaxic area. Another area is there which is not mentioned in the NCERT, but you should know this is known as the apneustic area. So let me say, so we have here, first one is the pneumotaxic, very important, and then we have the apneustic area. Now let us talk about the inspiratory center, inspiratory area. देखो, ये जो इंस्पिरेटरी एरिया है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी इस तरह से, हम्म.
राइट। तो यहाँ पे कहीं था हमारा, यहाँ पे था एक्सपायरेटरी एरिया, दिस इज द इंस्पिरेटरी एरिया। देखो इंस्पिरेटरी एरिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने अगर हार्ट में पढ़ा होगा, हार्ट में एक साइन ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड क्या करता है, वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक तरह का नर्व इम्पल्स होता है। जैसे हम नर्व इम्पल्स पे जा देते हैं, ये हम न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इंस्पिरेटरी एरिया ऐसे नोड की तरह काम करता है। ये क्या करता है, इट इज अ पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब है, पेस मेकर का मतलब है इट्स जनरेट्स एपी, एक्शन पोटेंशियल, फॉर द इंस्पिरेशन टू टेक प्लेस। देखो ये जो इंस्पिरेटरी एरिया है, ये क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है फॉर 2 मिनट्स। ओके। एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये दो तरह के नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। पहला जो फ्रेनिक नर्व, एंड सेकंड इज द इंटरकोस्टल नर्व्स। Now, what these nerves do, these send signals, these send signals to the, phrenic nerve is associated with what? Diaphragm. And this is associated with the external intercostal. ये दोनों क्या करेंगे, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इंक्रीज होगा थोरेसिक कैविटी में, राइट। And when there is increase in thoracic cavity, pressure in the thoracic cavity decreases, राइट। प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, एयर गोज इनसाइड थोरेसिक कैविटी। इसको हम बोल देते हैं इनहेलेशन, राइट। तो क्या किया इंस्पिरेटरी एरिया ने, इंस्पिरेटरी एरिया जो है दिस इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये याद रखो, दिस इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बिकॉज इट इज सेटिंग अप द, it's generating the impulses which would cause the contraction of these two muscles, the diaphragm and external intercostal muscle, which will contract and increase the thoracic cavity, that would lead to inhalation. तो inhalation का काम करता है, ये 2 मिनट के लिए जो है अपना सिग्नल्स भेजता है। तो 2 मिनट में ये सब हो जाता है। उसके बाद जो रेस्ट इन 3 मिनट होते हैं, 3 मिनट में नर्व इम्पल्सेस जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। जब ये स्टॉप हो जाए तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हुआ तो मसल्स क्या करेंगे, मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं, और जब मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं तो एक्सलेशन हो जाता है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। तो ये इंस्पिरेटरी एरिया का काम है। अब देखो, अब एक होता है एक्सपायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी एरिया, एरिया बोल लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ न्यूरॉन्स का क्लस्टर्स होता है जैसे इंस्पिरेटरी एरिया में था। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली इट डजंट रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम, रिमेन्स अनएक्टिव या इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। तो भैया ये कब एक्टिवेट होता है, देखो जब कभी कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कोई पहाड़ी चढ़ गया, तो अब क्या होगा, अब हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत है, राइट। अब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो अगर पहाड़ पे चढ़ोगे तो हायर एल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टिश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उस समय हमें जो है वेंटिलेशन को बढ़ाना पड़ता है, अपना पल्मोनरी वेंटिलेशन को इंक्रीज करना पड़ता है, ताकि हम लंग में जो है प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुंच सके, एंड देन दैट ऑक्सीजन वुड एंटर द टिश्यू। तो उसके लिए एक्सपायरेटरी एरिया सेंटर जो है इट बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग द फोर्सफुल इनहेलेशन। जब हमें फोर्सफुल इनहेलेशन की जरूरत है, दैट इज एक्सरसाइज और क्लाइंबिंग द माउंटेन।
इस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है इस इंक्रीज्ड एक्सपायरेशन या इंक्रीज्ड ब्रीथिंग की। तो ये क्या करता है, एक्सपायरेटरी एरिया जो है, पहले तो ये टू मच स्टिमुलेशन, जब हम ये कैसे एक्टिवेट होता है, टू मच स्टिमुलेशन ऑफ, जब हम इंस्पिरेटरी एरिया को ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे, क्यों भैया, क्योंकि हमें अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उस समय क्या होता है, ये जो है, ये पहले तो डायफ्राम और उसको तो करेगा ही करेगा, फ्रेनिक नर्व को तो करेगा ही करेगा एक्टिवेट या स्टिमुलेट, और इंटरकोस्टल नर्व्स को भी करेगा, राइट। साथ ही साथ ये जो है एक्सपायरेटरी एरिया के पास भी जाएगा कि भैया अब तुम भी स्टार्ट हो जाओ। तो ये एक्सपायरेटरी एरिया क्या करता है, ये जाता है और ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और उसके साथ कौन से थे, एब्डोमिनल मसल्स, राइट, इनके पास जाता है। तो इन दोनों को बोलता है कि भैया तुम लोग क्या करो, अब तुम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो इनहेलेशन है वो फोर्सफुल हो जाता है। तो इस समय पे इनहेलेशन जनरली क्या होता है, इट इज अ सॉरी एक्सहेलेशन जो है वो क्या होता है, एक्सहेलेशन जनरली क्या होता है, एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, लेकिन इस केस में जो एक्सहेलेशन है वो भी एक्टिव हो जाता है, एक्सहेलेशन बिकम्स एक्टिव। सो दिस कॉल्ड एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो इस तरह जब हमें जो है और किसी जगह पे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर हमारा इंस्पिरेशन ही तेज़ हो रखा है, इंस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत है, क्योंकि इनहेलेशन और एक्सेलेशन के बीच में बैलेंस की ज़रूरत है। तो इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए एक्सपायरेटरी एरिया स्टिमुलेट हो जाता है और ये क्या करता है, एक्सेलेशन को फोर्सफुली एक्सेल करवाता है। अगर हम फोर्सफुली सांस लें तो उसे फोर्सफुली बाहर भी निकालना पड़ता है, ताकि हमारी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ा था हमने, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो हैं इनको मेंटेन करना पड़ता है, इनकी वैल्यू आगे पीछे हो जाए तो देयर वुड बी प्रॉब्लम टू द बॉडी। सो उसको मेंटेन करने के लिए ये सारे सेंटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, कि जब एक को ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाए, जब इंस्पिरेशन बढ़ जाए, तो एक्सपायरेशन को भी बढ़ाया जाए, ताकि वो जो वॉल्यूम्स हैं दैट दे रिमेन कॉन्स्टेंट। So this is how the expiratory area is working. Now we have yes, here should I write? Then we had the pneumotaxic area. देखो न्यूमोटैक्सिक एरिया जो है इट इज इनहिबिटरी फॉर इंस्पिरेशन। इसका काम क्या है, ये जो देखो ये जो न्यूमोटैक्सिक और एनियोस्टिक हमने देखे थे, इन दोनों का काम एक जैसा है, ये जो है दे अफेक्ट द ब्रीथिंग रेट। तो ये क्या करते हैं, जैसे एक्सपायरेटरी एरिया क्या कर रहा था, वो फोर्सफुली एक्सेल करवा रहा था, लेकिन न्यूमोटैक्सिक और एनियोस्टिक एरिया जो होता है, व्हाट डू दे अफेक्ट द ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करते हैं या कम करते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रीथिंग रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी बार हम जो है ज़्यादा इनहेल एक्सेल करेंगे, जितना इनहेल एक्सेल ज़्यादा करेंगे उतना ही अगर अंदर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मानो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, मानो कि हमारे टिश्यूज़ में कुछ चल रहा है, बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो उस समय हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे आएगा, जितना ज़्यादा ब्रीथिंग का रेट होगा उतना ही ऑक्सीजन अंदर आएगा। तो ये न्यूमोटैक्सिक एरिया क्या करता है, ये इंस्पिरेशन को, जैसे हम लंबी सांस लें तो लंबी सांस लेंगे तो ब्रीथिंग रेट कम होगा, तो ये न्यूमोटैक्सिक एरिया क्या करता है, इंस्पिरेटरी सेंटर के पास जाता है और उसको जो है इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने से क्या होता है कि इंस्पिरेशन जो है दिस काजेस इंस्पिरेशन को शॉर्टन करता है। सो रेट ऑफ ब्रीथिंग को क्या करेगा, इंक्रीज करता है। उसी का उल्टा इफेक्ट ये करता है, ये इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करता है, इंस्पिरेशन को बढ़ाता है कि लंबे लंबे सांस। तो इससे रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। So this was about the neural regulation. So we have basically in the neural regulation we have
four kind of areas that are associated with the regulation and neuroregulation. So what are these areas? These are basically the cluster of neurons. Certain neurons are there which are clustered together and forming the four types of region. First one we talked about that two are in the pons and two are in the medulla oblongata. In the medulla oblongata there are inspiratory center, expiratory center. Inspiratory center, what are they doing? They are setting up the potentials. They are setting up the nerve impulses which will stimulate the external intercostal muscles and diaphragm to contract and increase the thoracic cavity. When the thoracic cavity increases, the pressure in the lungs that decreases, which would cause the air to rush into the lungs. When the air reaches the lungs, there is inhalation, and when this signal stops, these muscles relax, and when these muscles relax, the diaphragm and external intercostal muscles, they come back to their original place, decreasing the thoracic cavity, which would cause the increase in pressure in the lungs, and this increase in pressure in the lungs will cause the air to go out, and when the air goes out we call it exhalation. So exhalation is basically a passive process when when there is no stimulation of the internal intercostal muscle. When there is only the stimulation of inspiratory area, then the inspiration, then the expiration, exhalation, both of these are the same term. These become the at passive process. But now when we are forcefully inhaling, then we need to exhale forcefully also. So उस समय क्या होता है कि जो एक्सपायरेटरी एरिया होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, एंड वो क्या करता है, वो जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के पास, इम्पल्सेस भेजता है, और एब्डोमिनल मसल, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोरेसिक कैविटी कम हो जाती है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि प्रेशर बढ़ जाता है और एयर जो है मूव करती है आउटसाइड द लंग्स विद फोर्सफुली, तो उससे जो है एक्सेलेशन फोर्सफुली होता है, और इसको हम ये जो प्रोसेस जो पहले पैसिव था एक्टिव हो जाता है। अब दो सेंटर्स हैं, न्यूमोटैक्सिक और एनियोस्टिक। न्यूमोटैक्सिक जो है ये ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? ताकि मोर पल्मोनरी वेंटिलेशन हो सके। वहीं एनियोस्टिक एरिया जो है, जैसे आप कपालभाति आदि, कपालभाति नहीं, जैसे योगा में होता है ना कि लंबी लंबी सांसें लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो उस समय एनियोस्टिक एरिया ही होता है जो कि हमारे इंस्पिरेशन को बढ़ा देता है। तो आप देखो जहाँ पे आप एक मिनट में 12-16 अगर सांस ले रहे तो वहाँ आप 7-8 लोगे। तो ये जो एनियोस्टिक एरिया है ये आपके ब्रीथिंग रेट को कम कर देता है। अब केमिकल रेगुलेशन की बात करें, केमिकल रेगुलेशन की बात करें तो केमिकल रेगुलेशन में भी दो तरह के एक तो कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं पता होना चाहिए। कीमो रिसेप्टर्स, देखो हमारा कीमो का मतलब होता है केमिकल, और रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं चेंज पे। तो अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, या एच पॉजिटिव आइंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, या PO2 डिक्रीज हो जाए, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये इम्पल्सेस भेजते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को इन द ब्रेन, जो हमने पीछे पढ़ा, और अल्टर करते हैं, और अल्टर मतलब बदलते हैं या रेगुलेट करते हैं, अल्टर द रेस्पिरेशन रेट या ब्रीथिंग रेट है। तो ब्रीथिंग रेट को कर देता है। बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, एच पॉजिटिव आइंस बढ़ गए, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, ये उस समय इंस्पिरेटरी सेंटर को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं कि भैया तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन करो। वहाँ ही ये न्यूमोटैक्सिक को भी स्टिमुलेट कर देंगे कि तुम भी भैया जल्दी जल्दी रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है उसको इंक्रीज करो। तो ये काम होता है केमिकल कीमो रिसेप्टर्स का। तो कीमो रिसेप्टर्स जो हैं दो तरह से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। कीमो रिसेप्टर्स भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, और एक होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। सेंट्रल का मतलब है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे, यानी ब्रेन में होते हैं। तो ये ब्रेन में मेड्यूला ओब्लंगेटा के अराउंड ही होते हैं, यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ कहीं पे होंगे ये ऐसे 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 ऐसे। सो दीज आर द कीमो रिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। अब ये भी सेम काम करेंगे अगर इफ हाइड्रोजन आइंस की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, PCO2 बढ़ता है, तो ये करेंगे, ये दे विल सेंड इम्पल्सेस टू रेस्पिरेटरी सेंटर, और रेस्पिरेटरी सेंटर को बोलेंगे कि रेट ऑफ ब्रीथिंग
इंक्रीज कर। ओके, उसी तरह ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की बात करें तो पेरिफेरल का मतलब होता है जो पेरिफेरी पे है। पेरिफेरी पे कहाँ होगी, ये देखो, ये हार्ट से जो अरोटा राइज हो रहा है, यहाँ से इसकी ब्रांचेस बन रही है आर्टरी। तो ऐसे ही ये जो कैरोटिड आर्टरी होती है, यहाँ पे ये साइनसेस होते हैं, इनको बोलते हैं कैरोटिड साइनसेस। साइनसेस मतलब जो फूली फूली जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे होते हैं कीमोरिसेप्टर्स, जिनको हम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स बोलते हैं। और एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं इसमें, ये जो बन रहे हैं ना, ये जो आर्च बन रही है इस तरह से, इसको बोलते हैं हम आयोटिक आर्च, एओटिक आर्च। इस एओटिक आर्च में भी कहीं कहीं क्या कीमोरिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी होते हैं कीमोरिसेप्टर्स। काम क्या है इनका, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में दो तरह के कीमोरिसेप्टर्स आ गए। पहले आ गए एओटिक, एंड देन दूसरे आ गए कैरोटिड साइनसस में, ये इनकी पोजीशन है। अब ये भी सेम काम करते हैं, अगर हाइड्रोजन आइंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, PCO2 बढ़ जाता है, PO2 कम हो जाता है, तो ये जो है इम्पल्सेस भेजेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर को और इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज ही करेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग को। So this is how the chemical regulation of respiration taking place. Now let us read the NCERT. Regulation of respiration. Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues. This is done by the neural system. ये न्यूरल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। स्पेशलाइज सेंटर जो है मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, और इसका काम है यही रेगुलेट करना रेस्पिरेशन को। और दूसरा सेंटर पॉन्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करना मतलब या तो इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। तो न्यूमोटैक्सिक बेसिकली इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ब्रीथिंग। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। देखो, अगर इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम होता है तो जितना कम जल्दी इंस्पिरेशन जल्दी होगा और उतनी ही जल्दी एक्सपायरेशन होगा। तो इनहेलेशन एक्सपायरेशन जल्दी जल्दी होगा तो क्या होगा, तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा। तो बेसिकली ये इंस्पिरेशन को डिले कर रहे हैं, लेकिन सॉरी, इंस्पिरेशन को इंस्टेंट क्यूक कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं ना उसके ड्यूरेशन को। किसी की भी ड्यूरेशन को रिड्यूस करो तो मतलब उसको क्यूक करना, उसको जल्दी करना। तो इंस्पिरेशन को क्यूक कर रहे हैं ताकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़े। सो ये न्यूमोटैक्सिक का फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सवाल आएगा, कीमोसेंसिटिव एरिया जो है वो रिदम सेंटर के एडजेसेंट, मतलब जो मेडुला ऑब्लांगेटा के सेंट्रल कीमोरिसेप्टर उसकी बात कर रहे हैं, which is highly sensitive to PCO2 and hydrogen ions. Increase in this substance can activate this center, which can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process, by which these substances can be eliminated. मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन को या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, लेकिन अगर PCO2 बढ़ गया तो डिक्रीज करके तो कोई फायदा नहीं है ना। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन को बेसिकली अगर ये बढ़ जाएगा PCO2 तो ये इंक्रीज करेंगे, ताकि जो है प्रॉपर वेंटिलेशन की मदद से PCO2 जो है दे विल गो आउट, ओके, और ऑक्सीजन जो है इट कम्स इनसाइड। सो ये काम करता है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, ये किसकी बात कर रहा है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की। कैन रिकॉग्नाइज, ये भी CO2 और H पॉजिटिव को रिकॉग्नाइज करते हैं और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजते हैं, ताकि जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है उसको अल्टर करके नेसेसरी चेंजेस करे जाएं। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। अब ऑक्सीजन का रोल क्यों इनसिग्निफिकेंट है भैया, देखो ऑक्सीजन का ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का लेवल कम ही हुआ होगा। तो और H पॉजिटिव आइंस, तो ये दोनों, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये इसको सेंसिटिव होते हैं, इनको सेंसिटिव होते हैं। ऑक्सीजन के लिए बहुत कम सेंसिटिव होते हैं। अगर PO2 कम हो जाता है लेकिन PCO2 इंक्रीज नहीं होता, जो कि बेसिकली ज़्यादा नॉर्मली होता नहीं। जब भी PCO2 बढ़ता है तो PO2 कम होता ही होता है। लेकिन अगर कोई कंडीशन में PO2 भैया कम हो गया और PCO2 भी बढ़ा नहीं, वो भी कम ही है, तो उस केस में ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये जल्दी जो है ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। इसका ये मतलब था।
अच्छा, अब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सबसे पहले अस्थमा की बात करिए। अस्थमा जो है एलर्जी की वजह से होता है। जैसे पोलन ग्रेन से एलर्जी हो गई, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या स्मेल से, मिट्टी से किसी को एलर्जी हो गई, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रॉन हमारा जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें स्मूथ मसल का लेयर होता है, राइट। तो स्मूथ मसल लेयर में स्पैजम्स आ जाते हैं। एलर्जी की वजह से स्पैजम मतलब रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करने लग पड़ते हैं। स्पैजम्स होता है, इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है। किनका? ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स का। लंग्स के अंदर की बात है, ये लंग्स के बाहर की नहीं। जिसकी वजह से हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, मतलब ब्लॉकेज हो जाता है इवन रेस्पिरेटरी सेंटर में। वीजिंग होता है, तो ये अस्थमा में होता है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchial। एम्फीसेमा में याद रखना, एम्फीसेमा में क्या होता है, इसमें जो हमारा एल्वियोलस होता है उसकी वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। उसकी वॉल डैमेज होने की वजह से क्यों होती है? या तो सिगरेट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से या किसी केमिकल की वजह से जिसमें हम ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं। और ये क्रॉनिक डिसऑर्डर, ये ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए, बहुत देर। और इसकी वजह से हमारी लंग्स का जो सरफेस एरिया है, जो एल्वियोलर का, वो डिक्रीज हो जाता है। एफिशिएंसी ऑफ जो डिफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसका वन ऑफ द मेजर काज है सिगरेट स्मोकिंग। तो एम्फीसेमा में याद रखना, इट इज द डैमेज इन एल्वियोलर वॉल्स। एम्फीसेमा। अस्थमा में क्या याद रखना? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल से मतलब ऑक्यूपेशन के रिलेटेड हो, जो जैसे लोग काम करते हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे बहुत ही टॉक्सिक सबस्टांसेस का जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो वहाँ पे ऐसी गैसेस, ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं जो कि हमारे लंग्स को बैडली इन्फेक्ट करते हैं। बैड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होता है जिससे कि फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी फाइबर्स जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के, हमने पढ़ा था ना कि लेयर्स होती हैं। ट्रैकिया का जब टीएस पढ़ा था तो उसमें फाइबर्स और इलास्टिक टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है उसमें। अपने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था इसके, ट्रैकिया में। तो वो जो फाइबर्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी होता है इससे। तो इससे बचने का ये एक माध्यम है कि मास्क या प्रॉपर जो होता है ना कि सांस के रास्ते ना जा पाए, ऐसा प्रॉपर मास्क, प्रॉपर कवरिंग हो माउथ का एंड नेजल कैविटी का। सो इन सर्टन इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation, which will lead to fibrosis, that is proliferation of fibrous tissue, and thus causing serious lung damage. Workers in such industry should wear protective mask। ये तीन डिसऑर्डर्स जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं: अस्थमा, एम्फीसेमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उसके अलावा निमोनिया होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस। और निमोनिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया जाता है लंग्स में और इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। अब एल्वियोलाई में तो भैया हवा का एक्सचेंज होना था, लेकिन हवा के एक्सचेंज से तो क्या ही होगा, उसमें पानी बढ़ गया। पानी बढ़ गया तो एक्सचेंज हो पाएगा क्या? तो इससे जो डिफ्यूजन है गैसेस का वो बहुत कम डिक्रीज हो जाता है। डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा। रेस्पी जो हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई जो है टिश्यूज को वो इनसफिशिएंट हो जाती है। इट इज आल्सो अ डेडली कंडीशन। अगर निमोनिया ज़्यादा फैल जाए एंड इट इन्फेक्ट्स ऑल द मेजर पार्ट ऑफ द लंग्स, देन इट कैन लीड टू डेथ आल्सो। So this is pneumonia, which is caused by the bacteria Streptococcus pneumoniae, where the accumulation of fluid in the alveoli disrupts the diffusion of gases. Now tuberculosis. Tuberculosis is also a bacterial, TB कहते हैं इसको, राइट। तो बैक्टीरिया से ही होता है। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या था? ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम था। This bacteria was actually, I guess it was Mycobacterium. Yeah, yes, it should be Mycobacterium.
मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या करता है, दिस वायरस ट्यूबरकल्स बन जाते हैं इसमें, ट्यूबरकल्स। ट्यूबरकल्स क्या होते हैं, टिश्यू मासेस होते हैं। ये जो है ये ट्यूबरकल, जैसे ये ब्रोंकाई था, अब जब टीवी हुआ तो इसमें ये ऐसी तरह से ट्यूबरकल्स बन गए। दिस इज अ ट्यूबरकल। अब ये ट्यूबरकल क्या करता है, स्प्यूटम रिलीज करता है। स्प्यूटम समझते हो, म्यूकस की तरह होता है। और ये, अब यहाँ पे अगर एयर जाएगी तो एयर में ब्लॉकेज होगा। एयर जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज करेगा, तो एयर का पाथ जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। एंड स्पूटम क्या करेगा, इट विल फिल द दिस रेस्पिरेटरी एरिया विद फ्लूइड। तो इन सब की वजह से भी जो है रेस्पिरेशन जो है वो हिंडर्ड होता है। ओके, सीओ पॉइजनिंग, सीओ पॉइजनिंग यानी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी 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 डेंजरस गैस इफ इट इज लाइक, अगर आप बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग जो है रात को कोयला जला के सो गए सर्दियों में, एंड उन्होंने अपना विंडोज वगैरह ओपन नहीं कर रहा, रूम प्रॉपर्ली वेंटिलेट नहीं था, और सुबह जब उठे दे वर डेड। सो ऐसा क्यों होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, has very very high affinity for कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इसकी एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा एफिनिटी होने की वजह से इवन जितना कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा उससे 200 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है, 200 टाइम्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब जब इतनी एफिनिटी हो, एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन काइंड कि अगर इसको एक कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया जाए और एक ऑक्सीजन दिया जाए, तो ये जो है इवन एक कार्बन मोनोऑक्साइड दिया जाए और 10 ऑक्सीजन दिए जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ तोड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से इसको बहुत प्यार है। तो हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है, अगर ये कार्बन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको, जैसे वहाँ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये पहली तो बात है कि ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन खुद ही नहीं चूज करेगा, प्लस ये क्या करता है, इट डिक्रीजेस द एफिनिटी फॉर O2 या बाइंडिंग ऑफ O2 टू। अब ऑक्सीजन तो भैया हीमोग्लोबिन लेके जा ही नहीं रहा है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही लेके जा रहा है, तो टिश्यूज में, टिश्यू लेवल में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो टिश्यू क्या होगा, डेड ही होगा। तो अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए हम सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही लें, या फिर हम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हवा में बहुत कम हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है इनकम्प्लीट कॉम्बशन से, इनकम्प्लीट कॉम्बशन, जैसे कोल को जला लिया, इनकम्प्लीट। खासकर वैसे यहाँ पे फ्यू, जैसे ये देखो, एक तो होता है कोई चीज जलती है तो आग निकलती है, उसको बोलते हैं कंप्लीट कॉम्बशन, और जिससे आग ना निकले सिर्फ हीट निकले उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कॉम्बशन। जैसे कोयला जलता है तो फ्लेम्स थोड़ी निकलती हैं इतनी ज़्यादा। वहीं अगर व्हीकल्स में जो फ्यूल बर्न होकर एनर्जी डिराइव होती है तो उन सब में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट हैज हायर 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 एफिनिटी फॉर hemoglobin, like 200 times more than that for oxygen. So this causes binding of hemoglobin to carbon monoxide, and when carbon monoxide binds to the hemoglobin, it reduces its affinity for carbon dioxide. It unbinds the carbon. It doesn't bind the oxygen with it and goes to the tissue. When it reaches the tissue, it doesn't have oxygen to supply to the tissues, so the tissue gets scarcity of oxygen and they die. So this can lead to death. This is a very serious problem. Then we have another, nowadays, if you know that lung cancer is the leading cancer in India. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो लंग कैंसर ही है। लंग कैंसर जो है स्मोकिंग से भी होता है, इतना तो आज एक्टिव स्मोकिंग से इतना इफेक्ट नहीं होता जितना पैसिव स्मोकिंग से होता है। यानी अगर आप स्मोक कर नहीं रहे हैं लेकिन आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा स्मोक करता रहता है, तो
आपको वे उस स्मोकिंग से जो इफेक्ट होने वाले हैं, चाहे वो कोई किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो या लंग कैंसर हो, वो होने के चांस आपको इवन मोर हो सकते हैं या उतने ही हैं जितने कि एक एक्टिव स्मोकर को है. So smoking, if it is active or passive, both are dangerous to us. And lung cancer is, it is at its base because of smoking also. Smoking is one of the biggest reasons for all these problems. Actually, smoking causes a wide range of problems related with respiratory system. So with this we complete this chapter. I hope you understood everything that I taught in this chapter. अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ऑल्दो पूरा का पूरा चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया है, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करी है. सो अगर आपने वीडियोस पुरानी नहीं देखी हैं तो देखें और इस चैप्टर पे अपना होल्ड बना लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.